Hello and welcome to the session, students. I hope you all are doing well and studying well also. Let us continue with our session of data structures. In the last lecture, we saw this two algorithms, linear search and binary search. Now, to continue with that, you remember in the linear search, whichever element we were searching, we have to compare it with each and every element present in the array, right? So that was the sequential search, or also called as linear search. But in the binary search, we saw that the each array is having lower bound and upper bound, and using that lower bound and upper bound, a middle point is calculated and the element is compared with that middle element. And according to the result that the number which we are searching is lower or higher, we'll take that part of the array into consideration and again find out the midpoint and then compare the values. So using binary search, the task was completed in very few steps as compared to the linear search or sequential search. So there is a difference between linear search and binary search which can come in the exam. Let us quickly see that. So difference between linear search and binary search is, the first point of differentiation is linear search performs on unsorted list of elements as well as on the sorted list. This was the first mandatory requirement of binary search, that the array which we array in which we have to find the element has to be sorted, so that अगर वो sorted नहीं होगा तो एलिमेंट छोटा है बड़ा है, लास्ट टाइम का वीडियो अगर आपने देखा हो तो हमें जो एलिमेंट ढूंढना था वो पहले मिडिल पर कंपेयर कर रहे थे, एंड अगर वो एलिमेंट वहां है तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो जो हम एलिमेंट ढूंढ रहे हैं वो अगर छोटा है, स्मॉलर देन व्हाट वी हैव गॉट, then the left part of the array was taken into consideration. That means the upper bound was shifted to mid minus 1. So this was the first requirement of the binary search. So यही एक पहला difference का point बनेगा, that linear search performs on unsorted list of elements as well as on sorted list. Linear search में कोई compulsion नहीं है कि sorted array ही होना चाहिए. So as far as binary search is concerned, for binary search, the elements of the array has to be sorted in the order. Second was linear. Second difference is it compares the desired elements in an array until the match is found. In linear search, जब तक एरे, जब तक हम जो एलिमेंट ढूंढ रहे हैं वो मिल नहीं जाता तब तक एरे का हर एक एलिमेंट कंपेयर किया जाएगा. यहाँ पर बाइनरी सर्च में क्या हो रहा है, कंपेयर द वैल्यू ऑफ मिड पॉइंट विद द डिजायर्ड वैल्यू. इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन द मिड पॉइंट वैल्यू, द फर्स्ट हाफ इज चेक्ड, अदरवाइज द सेकेंड हाफ इज चेक्ड अंटिल द सर्च इज सक्सेसफुल. यहाँ पे हर एक एलिमेंट कंपेयर हो रहा है. यहाँ पे मिड पॉइंट कैलकुलेट हो रही है ऑफ द एरे इनटू कंसीडरेशन, एंड देन वहां पर कंपेरिजन हो रहा है, and it is going on that way. Not each and every element of the array is compared in binary search. Next is, for larger size of array, time required for this search will be very large. In linear search, time required ज़्यादा होगा of course, क्योंकि हर एक element compare हो रहा है. For large size of the array, comparatively time required will be less, क्योंकि यहाँ पर हर एक element compare होने वाला नहीं है. अगर बड़ा array है, 100 elements का array है, तो पहले mid पर comparison होगा. कंपैरिजन होने के बाद द एरे साइज विल गेट इनटू हाफ फॉर कंसिडरेशन. डिलीट नहीं होगा कुछ, फॉर कंसिडरेशन एरे साइज विल गेट इनटू हाफ. सो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ विल बी कंसिडर्ड. सो उस हिसाब से यहाँ पर टाइम कम लगेगा एज कंपेयर टू द लीनियर सर्च. बस यहाँ पर कंडीशन एक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट द एरे हैज टू बी सॉर्टेड. Then time complexity is as follows. In the worst case, n comparisons, मतलब हो सकता है अगर 100 एलिमेंट्स का एरे है तो 100 के, और हम जो एलिमेंट ढूंढ रहे हैं वो 100th पोजीशन पर ही है, तो वो दैट विल बी कंसीडर्ड एज द वर्स्ट केस. मतलब हमें एलिमेंट मिला 100 कंपैरिजंस करने के बाद, राइट. बेस्ट केस में दैट कैन बी 1. यहाँ पर वर्स्ट केस मतलब ज्यादा से ज्यादा कंपैरिजंस करनी पड़ी तो भी इट विल बी log n to the base 2 comparisons, which is a calculated formula जो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताई थी. एंड बेस्ट केस में तो एक ही कंपैरिजन में, यहाँ पर जैसा है कि एक ही कंपैरिजन में जस्ट बाय लक की फर्स्ट पोजीशन पर ही हमारा वो एलिमेंट है. So this is the worst case, and the best case time complexity of linear search and binary search. नेक्स्ट अभी हमें नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करना है, दैट इज पॉइंटर एरेज. नाउ एरेज आपको पता है, एरेज क्या है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस, राइट. लिस्ट ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स. होमोजेनियस एलिमेंट्स से हमारा मतलब है कि जो भी एलिमेंट्स उस एरे में होंगे वो एलिमेंट्स एक ही टाइप के होंगे. अगर सब न्यूमेरिक वैल्यूज है तो न्यूमेरिक वैल्यूज ही रहेंगी, अगर कैरेक्टर्स है तो सब कैरेक्टर एलिमेंट्स ही रहेंगे,
राइट. तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द एरे कि अंडर वन नेम आप n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ अ एरे. बट यहाँ पर एरे वर्ड तो है, बट उसके साथ पॉइंटर वर्ड भी है. सो लेट अस सी. An array is called as pointer array if each element of that array is a pointer. The variable is called as pointer variable. An array is called pointer array if each element of that array is क्या बोला, pointer. अगर उस array का हर element pointer होगा तो ही वो array pointer array होगा. मीन्स अगर नंबर्स होते तो न्यूमरिक एरे बोलते, राइट. तो यहाँ पर पॉइंटर एरे, अगर उस एरे में सब एलिमेंट्स पॉइंटर्स हैं तो वो एरे पॉइंटर एरे है. बट पॉइंटर क्या होता है? द वेरिएबल इज कॉल्ड एज पॉइंटर वेरिएबल इफ इट पॉइंट्स टू अनदर वेरिएबल. ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल को पॉइंट करता है उस वेरिएबल को पॉइंटर वेरिएबल बोलते हैं. मतलब ऐसे वेरिएबल्स का कलेक्शन जो दूसरे वेरिएबल्स को पॉइंट करता है, अगर वो कलेक्शन को देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज अ पॉइंटर एरे. दैट इज इट कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. यहाँ पर पॉइंटिंग की मीनिंग बता रहा है. यहाँ पर क्या बोला? इट पॉइंट्स टू अनदर वेरिएबल. पॉइंट्स टू अनदर वेरिएबल का मतलब होता है उसके पास मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल है. यहाँ पर देखिए मैं आपको बताती हूँ. A programming language, object that stores in a programming language, an object that stores the memory address of another value located in computer memory. Pointer उसको बोलते हैं. ऐसी चीज जो दूसरे वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस अपने अंदर स्टोर करती है उसको पॉइंटर बोलते हैं. सो अ वेरिएबल दैट पॉइंट्स टू सम अदर मेमोरी लोकेशन. दिस इज इन अदर वर्ड्स ऐसा वेरिएबल जो दूसरे that points to some other memory location. मतलब उसके पास खुद के पास क्या है? खुद के पास कोई वैल्यू नहीं है. उसके पास उस वेरिएबल के पास दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस है. सो यहाँ पर एक एग्जांपल है. देखिए एक वेरिएबल है सपोज b. हमने VB में देखा था एज मतलब अभी तक एक्चुअली हम स्टार्ट कर चुके होते C++, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए हैं. जैसे ही स्टार्ट होंगे कॉलेजेस हम स्टार्ट करेंगे. दिस इज अ C++ डिक्लेरेशन जो अब तक आपको पता हो सकती थी, बट यहाँ पर मैं आपको फिलहाल समझना पड़ेगा. ऐसे जैसे हम VB में लिखते थे dim a as integer, हम अगर C++ में एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं जिसका डेटा टाइप इंटीजर होने वाला है, तो हम C++ में int स्पेस उस वेरिएबल का नाम लेके उसको डिक्लेयर कर सकते हैं. सो यहाँ पर int स्पेस b नाम का एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया जो b वेरिएबल इंटीजर है, राइट. इट इज गोइंग टू स्टोर इन इंटीजर वैल्यू इन इट. सो यहाँ पर एक जगह बनती है जो b में जो भी मैं वैल्यू डालूंगी वो वहां पर जाके स्टोर होगी. कहाँ? ऑफ कोर्स मेमोरी में. एंड मेमोरी में है मतलब उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा. यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक वेरिएबल है, नाम है a और उसका डेटा टाइप है int. बट इस वेरिएबल में और इस वेरिएबल में एक डिफरेंस है कि यहाँ पर एक एस्ट्रिक साइन आपको दिखाई दे रही है. ये एस्ट्रिक इंडिकेट करता है कि ये एक पॉइंटर वेरिएबल है. ये एक पॉइंटर वेरिएबल है. पॉइंटर वेरिएबल का मतलब होता है ऐसा वेरिएबल जो अपने अंदर दूसरे वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस रखता है. मतलब दिस वेरिएबल a is pointing to the variable b. This is a normal variable, whereas this a is a pointer variable which is storing the address of another variable. सो यहाँ पे हमें पॉइंटर नहीं समझना है. पॉइंटर हम C++ में और अच्छे से डिटेल में प्रोग्राम्स के साथ करेंगे, बट पॉइंटर एरेज यहाँ पर टॉपिक है. तो हमें ये पता होना चाहिए पॉइंटर एरे मींस ऐसा कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स जो सब वेरिएबल्स पॉइंटर्स है. सब वेरिएबल पॉइंटर्स है मतलब उन सब वेरिएबल्स के पास दूसरे वेरिएबल्स की एड्रेसेस है, यानी दे आर पॉइंटिंग टू अदर वेरिएबल्स. सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं पॉइंटर एरेज का. कंसिडर एन ऑर्गेनाइजेशन विच डिवाइड इट्स एम्प्लॉय लिस्ट इनटू 4 ग्रुप्स. एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कंडीशन. Following figure shows the list of 4 groups. There are 15 employees and groups contains say 2, 5, 4 and 4 employees respectively. यहाँ पर देखिए 4 ग्रुप्स में एक कंपनी के 15 एम्प्लॉयज को डिवाइड करके रखा हुआ है. If these groups are to be presented in memory, the most efficient way is to store using 2 arrays. अगर ये ग्रुप्स को इन चारों ग्रुप्स को विथ नेम्स अगर आपको मेमोरी में स्टोर करके रखना है तो एफिशिएंट वे क्या होगा? एरेज. कैसे होगा वो? ऐसा द फर्स्ट इज द एम्प्लॉय इन ऑल 4 ग्रुप्स सीक्वेंशियली. पहला एरे क्या होगा? एम्प्लॉय एरे होगा जिसमें चारों ग्रुप्स के सब एम्प्लॉयज होंगे क्योंकि डेटा टाइप सेम होता है आपको पता है. मतलब सब अगर मैं स्ट्रिंग्स डाल रही हूँ तो मेरे उस एम्प्लॉय एरे में सब एम्प्लॉयज के नाम होंगे.
while the second array is a group array which is a pointer array which contains the starting address of each group in the employee array respectively. Second array क्या होगा मेरा, एक group array होगा. Group array क्या करेगा, group array के पास pointer, एक group array एक pointer array होगा जिसके पास हर एक ग्रुप के एम्प्लॉइज का एड्रेस होगा कि वो कहाँ से स्टोर्ड है उस पर्टिकुलर एरे में. देखिए पिक्चराइजेशन से ज्यादा समझ में आएगा. ये देखिए एम्प्लॉई एरे है, सब डेटा टाइप्स देखिए, डेटा टाइप सेम होता है. यहाँ पर सब आपको डिफरेंट स्ट्रिंग्स दिखाई दे रहे हैं, राइट. सो दीज आर द 15 एम्प्लॉइज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स. वो ग्रुपिज्म कैसे हो रहा है, वो ग्रुप्स कौन से है, दैट इज स्टोर्ड इन अ पॉइंटर एरे. अब इस पॉइंटर एरे में देखिए क्या है, पहला एलिमेंट क्या है इसका, 1 बोल रहा है. 1 मीन्स 1 इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट मेंबर. ओके, सो 1. देन उसके बाद सब जो भी एरे एलिमेंट्स आएंगे दैट विल बी द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप. देन सेकेंड एलिमेंट क्या बोल रहा है, 3. 3 मीन्स ये सेकेंड ग्रुप का जो एम्प्लॉइज हैं वो 3 मेमोरी लोकेशन पर स्टोर्ड है. सो थर्ड मेमोरी लोकेशन पर आपको ग्रुप 2 के एम्प्लॉय मिलेंगे. देन उसके बाद कंटिन्यूएशन में सेकेंड ग्रुप के एम्प्लॉइज एक्सेस होंगे. एंड देन थर्ड यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 8 मीन्स 8 मेमोरी लोकेशन पर आपको दिस थिंग थर्ड ग्रुप के एम्प्लॉइज मिलेंगे. सो दिस वे ये एरे क्या कर रहा है, ये एरे दूसरे वेरिएबल्स की एड्रेस अपने अंदर रख रहा है. एड्रेस रखने से क्या हो रहा है, एड्रेस रखने से ये एक पॉइंटर एरे बन रहा है. सो दिस इज अ पॉइंटर एरे व्हिच इज स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स of the different employees of different groups. So each element of the group array is a pointer which holds the address of the different groups, hence it is called as a pointer array. ये pointer array, पॉइंटर क्या है, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको और बेटर वे में समझ में आएगा. फॉर द टाइम बीइंग आपको ये जानना है कि पॉइंटर एरे मींस ऐसा एरे जिसके हर एक एलिमेंट एक पॉइंटर है. पॉइंटर है मींस वो दूसरे एरे के किसी एलिमेंट को या दूसरे नॉर्मल एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, यानी उसके अंदर अपने अंदर उसकी मेमोरी एड्रेस स्टोर कर रहा है. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर एरे. नाउ नेक्स्ट इज रिकॉर्ड. Now, what do you mean by a record? A record is a collection of related data items, each of which is called as field or attribute. क्या बोल रहा है, रिकॉर्ड क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स. अगर किसी एम्प्लॉय का डिटेल डेटा एक ऑर्गेनाइजेशन स्टोर कर रहा है, तो सपोज उसका नेम स्टोर किया, एड्रेस स्टोर किया, कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर किया, क्वालिफिकेशन स्टोर किया, सैलरी स्टोर किया, वर्किंग आवर्स स्टोर किया, सारी डिटेल्स जब उस एम्प्लॉय की स्टोर होती है तो व्हाट दिस एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय की ये सब डिटेल्स क्या बता रही है, दैट दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय. सो रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटिव डेटा आइटम्स जो आपस में रिलेटेड है. अगर इस एक एम्प्लॉय का डेटा हम नाम ले रहे हैं तो उसी एम्प्लॉय के सारे डिटेल्स होंगे, उसी एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी होगा एंड सो ऑन. ईच ऑफ विच इज कॉल्ड एज फील्ड और एट्रीब्यूट. ये सब क्या है, जो भी मैंने बोला, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, दीज आर द फील्ड्स और द एट्रीब्यूट्स जिसके लिए डेटा दिया जा रहा है. कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स इज नोन एज फाइल्स. ऐसे ही रिकॉर्ड्स, अगर एक एम्प्लॉय का डेटा डालती हूँ मैं तो दैट इज वन रिकॉर्ड फॉर मी. बट अगर यहाँ पर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सब एम्प्लॉयज का डेटा, सब एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स को एनलिस्ट करती हूँ, रिकॉर्ड्स डालती हूँ, सो दैट कलेक्शन बिकम्स अ file for me, that this is the collection of all the records of my employee, right? So collection of data is frequently organized into a hierarchy of fields, records and files. Data ऑर्गेनाइज किया जाता है कैसे, इन द हायरार्की ऑफ, मतलब फील्ड्स चाहिए कि क्या क्या आप उसके बारे में ले रहे हैं, एम्प्लॉय की क्या क्या डिटेल्स आप स्टोर कर रहे हैं, एंड देन उन फील्ड्स की पर्टिकुलर वैल्यूज फॉर पर्टिकुलर एम्प्लॉय, दैट becomes a record, and collection of all the record becomes the files. So data organize होता है in the hierarchy of fields, records and files. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे first name, surname, address 1, address 2, postcode, ये सब क्या है, fields. and अगर यहाँ पर ये first employee का अगर मैं यहाँ पर data ले रही हूँ तो this is one record for me, this is second record, this is third, and these records का collection बनता है file.
रिकॉर्ड में कंटेन, अब यहाँ पर देखिए ये पहला रिकॉर्ड है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर भी न्यूमरिक भी वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू भी, देन स्ट्रिंग है, यहाँ पर अल्फा न्यूमरिक वैल्यूज है। अगर यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर ले लूँ तो वहां पर एक न्यूमरिक वैल्यू होगी, राइट। एज ले लूँ तो यहाँ पर एक न्यूमरिक वैल्यू होगी, डेट ऑफ बर्थ लूँ तो दैट विल बी अ डेट काइंड ऑफ वैल्यू। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एक रिकॉर्ड में, एक पूरे रिकॉर्ड में जो भी वैल्यूज होंगी वो होमोजेनियस होंगी? नहीं, नॉन होमोजेनियस होगी, ऑफ कोर्स, बिकॉज that value may be alphabetic, alphanumeric, or only numeric, date kind of, time kind of. So a record may contain non-homogeneous data, that is data items. This is a one data item. So data item of records need not to be of same type. Record में होगा भी नहीं और होना चाहिए भी नहीं, because it is a record. In a record, natural ordering of elements is not possible. The array elements, अब यहाँ पर देखो array में क्या था, array के सब elements एक ही टाइप के थे और वहां पर नेचुरल ऑर्डरिंग भी पॉसिबल था कि दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज सेकंड एलिमेंट, दिस इज थर्ड। यहाँ पर दिस इज फर्स्ट रिकॉर्ड और रिकॉर्ड के अंदर कितनी सारी चीजें, तो इनका नेचुरल ऑर्डरिंग पॉसिबल नहीं है। तो ऑर्डरिंग कैसे होता है आगे देखेंगे। The elements in the record can be described by level number. ये जो elements है, ये duck क्या है? Duck is the surname of the employee, right? So this is the level in which we are taking this data item into consideration or we are accessing this data item. यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से आपको समझेगा। An organization keep records of its employees. Suppose एक organization अपने employees का सब records रख रही है and it contains the following data items: name, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ऐसे करके उनके डिटेल्स को रखा जा रहा है। क्या क्या रखा जा रहा है? नेम, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस। यहाँ पर नेम एक ग्रुप आइटम है, ये आपको समझना भी जरूरी है। नेम एक ग्रुप आइटम है, स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था। ग्रुप आइटम मतलब ऐसा डेटा आइटम दैट विच कैन बी फर्दर डिवाइडेड। ओके, सो नेम इज अ ग्रुप आइटम कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। वैसे ही डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ले लो, जेंडर का कोई फर्दर डिवीजन नहीं है, सैलरी का कोई फर्दर डिवीजन नहीं है। देन डेट ऑफ बर्थ का डिवीजन होगा कि डेट ऑफ बर्थ में डेट क्या है, मंथ क्या है, ईयर क्या है, दैट इज द फर्दर डिवीजन ऑफ दैट ग्रुप आइटम। सो एड्रेस का अगेन डिवीजन होगा कि सिटी कौन सी है, पिन कोड कौन सा है, एरिया कौन सा है, लाइक तो ऐसे आइटम्स जो फर्दर और बेटर वे से स्पेसिफिकली स्टोर किए जाते हैं उनको ग्रुप आइटम्स बोलते हैं। So name is a group item. Also date of birth and address are group items. The structure of this record is shown in the figure below. यहाँ पर देखिए इसका रिकॉर्ड का स्ट्रक्चर कैसे स्टोर होगा। हम किसके बारे में ये सब डेटा स्टोर कर रहे हैं? एम्प्लॉय। सो एम्प्लॉय इज एट लेवल नंबर 1। एम्प्लॉय के कौन से फील्ड स्टोर हो रहे हैं? नेम, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, दीज आर द डेटा आइटम्स जिसके हम स्टोर कर रहे हैं। बट अगेन नेम का भी पार्ट्स है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, सेम डेट ऑफ बर्थ। सो लेवल नंबरिंग देखिए। सो मुझे अगर मिडिल नेम जानना है एम्प्लॉय का, सो इट विल बी लाइक एम्प्लॉय के नेम का मिडिल नेम आई एम फेचिंग, राइट। सो दिस इज द लेवल नंबर्स गिवन। अब यहाँ पर लेवल नंबर क्या है? द नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ ईच वेरिएबल इंडिकेट्स द लेवल नंबर। सपोज वी वांट टू नो द लास्ट नेम ऑफ द एम्प्लॉय, देन इट इज एक्सेस्ड यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। सो एम्प्लॉय के नेम का लास्ट नेम। यहाँ पर आप समझ रहे हैं एक चीज, एरे में अगर आपको फिफ्थ एलिमेंट को देखना था, आप क्या लिख रहे थे? एरे का नाम स्क्वायर ब्रैकेट्स में 5, तो फिफ्थ एलिमेंट को आप प्रिंट या चेंज या जो भी करना था एक्सेस कर रहे थे। यहाँ पर रिकॉर्ड जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड डेटा स्ट्रक्चर है, नॉन होमोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर है, एंड जहां पर नेचुरल ऑर्डरिंग इज नॉट पॉसिबल, वहां पर आपको डॉट ऑपरेटर से एक्सेस करना है, दैट इज एम्प्लॉय डॉट नेम डॉट लास्ट नेम। ये रिकॉर्ड डेटा स्ट्रक्चर फिलहाल आपको सिर्फ थ्योरेटिकली है, इसका कोई प्रैक्टिकल आपको ना सी में है और ना ही आपको किसी और लैंग्वेज में 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस के लिए करना है। बट रिकॉर्ड यू शुड अंडरस्टैंड दैट अ रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स and that can be non-homogeneous. So generally for separating sub items from the group items, dot operator is used. Clear है इतना? Then representation of records in memory. अब इन सब records को अगर हमें memory में store करना है, मतलब अगर मुझे employee का नाम, first name, middle name, last name, gender, ये सारी चीजें को memory में store करना है, तो कैसे store होगा, right? तो देखते हैं। Consider a record whose structure is given below. To represent this record in
this is the structure. To represent this record in memory, linear arrays are used. अगेन इसी रिकॉर्ड को जो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है उसको सिंपली लीनियर एरेज का यूज करते हुए मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है. नाउ हाउ इज इट पॉसिबल? वन सेपरेट लीनियर एरे, ये लाइन बताएगी आपको, वन सेपरेट लीनियर एरे इज यूज्ड फॉर ईच एलिमेंट्री आइटम. एलिमेंट्री आइटम मतलब जिसका फर्दर डिविजन ना हो, बताया था. Group item means which are further divided, and elementary item means which are not further divided, which cannot be further divided. So one separate linear array is used for each elementary item of record, such as first name, last name, gender, city, pin code, and phone number. So हर एक फर्स्ट नेम के लिए, मिडिल नेम के लिए, लास्ट नेम, डेट, मंथ, सैलरी, जेंडर, जो भी एलिमेंट्री आइटम है उनका एक एरे. अगर मैंने जेंडर का एक एरे बना दिया, सो टेल मी वन थिंग स्टूडेंट्स, उस जेंडर के एरे में सब एम्प्लॉइज का जेंडर आएगा. दैट मीन्स मेल फीमेल लाइक दैट. सो इट विल बी अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, मीन्स इट विल बी अ स्ट्रिंग. अगर मैं डेट नाम का एक एरे बनाती हूँ और उस एरे में क्या होगा, उस पर्टिकुलर, सी एरे की लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखना है. उस एरे में न्यूमेरिक वैल्यूज आएगी फ्रॉम 1 to 30, 31 और वॉट एवर इट इज. सो सब न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी, तो वो सब न्यूमेरिक वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट करेंगी? डेट एलिमेंट ऑफ डेट ऑफ बर्थ. राइट, यहाँ पर देखिए, सी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सिटी, पिन कोड, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिए गए हैं. सपोज रिकॉर्ड 1 है, यहाँ पर लोकेश मेहरा, हु इज अ मेल, कल्याण, पिन कोड इज दिस, फोन नंबर इज दिस. सो यहाँ पर this is one array, this is second another array, these are all the arrays. So following figure shows the representation of above record using parallel linear arrays. एग्जाम में आता है कि रिकॉर्ड्स को किस तरह से मेमोरी में रिप्रेजेंट किया जाएगा, using parallel arrays. The records are stored in memory using parallel linear arrays such that for an index k, अगर k index, suppose k is 3, तो 3 ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स, अगर मैं k की वैल्यू 3 लेती हूँ तो फर्स्ट नेम का थर्ड, ये एरे है, ऑफ कोर्स फर्स्ट नेम एक एरे है, राइट. तो फर्स्ट नेम का थर्ड पोजीशन, लास्ट नेम का थर्ड एलिमेंट, जेंडर का थर्ड एलिमेंट, सिटी का थर्ड एलिमेंट, पिन कोड का थर्ड, फोन नंबर का थर्ड, विल गेट मी व्हाट? विल गेट मी द details of the third employee, right? So that means that belongs to the same record in a file, that is the kth record in a file, right? So यहाँ पर array की limitations भी रह जाती है. See all जो भी फर्स्ट नेम में आएंगे ऑफ कोर्स उनका डेटा टाइप सेम होगा, लास्ट नेम में डेटा टाइप सेम होगा, एंड हर एक एरे में से वो पर्टिकुलर इंडेक्स का एलिमेंट लेने से हमें उस एम्प्लॉय का पूरा रिकॉर्ड एक्सेस करने मिल सकता है. Right, so this is all for the record. Now difference between record and linear array. linear array को यूज करते हुए ही रिकॉर्ड बन रहा है, बट डिफरेंस क्या है? linear array में होमोजेनियस एलिमेंट्स स्टोर होते हैं, बट एक linear array पैरेलली लेके, कलेक्शन ऑफ linear arrays लेके मैं एक रिकॉर्ड स्टोर कर पाऊंगी, यानी मैं नॉन होमोजेनियस डेटा स्टोर कर पाऊंगी. दैट इज द रिलेशन बिटवीन linear array एंड रिकॉर्ड. डिफरेंस देख लेते हैं. रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ फील्ड्स. रिकॉर्ड क्या है? एक कलेक्शन ऑफ फील्ड्स है. linear array, a linear array is a list of homogeneous data elements. Imagine कर रहे हैं, एक array means एक ही type का data, and record means collection of fields. हर एक field का different value that can be of different type. A record may contain non-homogeneous data, that is data elements may be of different data types, right? So an array always contains the homogeneous data type. In a record, natural ordering of the elements is not possible. जैसा आपने देखा, array elements can be naturally ordered. Array element naturally order होते हैं 1, 2, 3, 4 and so on. Record की ordering कैसे होती है? Using the level number. Elements of the records are referenced by level number. रिकॉर्ड के अगर किसी भी एलिमेंट को मुझे रेफर करना है तो लेवल नंबर से, दैट एम्प्लॉय थर्ड लेवल नंबर, एम्प्लॉय डॉट name dot last name, like that. Elements of the array are referenced by the index set consisting of n consecutive numbers. So n consecutive numbers that forms the index set, उस index set के जरिए हम array के किसी भी element को refer कर सकते हैं. So आज हमने दो differences देखे, difference between linear search and binary search, and the difference between record and linear array. So this was all about record and linear array. In the next lecture, we'll be saying linked list and trees.
Linked list, trees, stack, and queue. These four are the data structure which are remaining. That's all for today. See you guys very soon. Bye. Take care.